BRS کے ورکنگ صدر KTR نے ورنگل میں MBBS کے طالب علم کو مالی امداد کی فراہم۔ KTR ایک ایسے طالب علم کی مدد کے لیے آگے آئے جسے اپنی خراب مالی حالت کی وجہ سے MBBS کی سیٹ کھونے کا خطرہ تھا۔ ورنگل کے گنیش نامی طالب علم نے چھوٹی عمر میں ہی اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو کھو دیا تھا اور اس کی پرورش اس کی دادی نے کی تھی۔ اس نے حال ہی میں MBBS کی سیٹ حاصل کی اور میڈیکل کالج میں داخلہ لینے کے لیے اسے 6 اکتوبر تک 1.5 لاکھ روپے بطور ٹیوشن فیس جمع کرنے تھے۔ گنیش رقم ادا کرنے سے قاصر تھا۔ وقت پر ادائیگی نہ کرنے کے سبب اس کی سیٹ بھی جا سکتی تھی۔ وقت پر ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے وہ MBBS کی سیٹ سے محروم بھی ہو سکتا تھا۔ اس نے ایکس پر مدد طلب کی اور اس کی درخواست کا جواب دیتے ہوئے KTR نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر اعلان کیا کہ وہ اس کی مدد کریں گے۔ وعدے کے مطابق KTR نے سابق MLA D ونے بھاسکر کے ذریعے گنیش کی تفصیلات حاصل کی اور 1.5 لاکھ روپے کا بندوبست کیا اور فوری طور پر امداد اس کے حوالے کی۔ KTR نے یقین دلایا ہے کہ وہ مستقبل میں بھی گنیش کی پڑھائی میں تعاون کریں گے۔ ورنگل میئر جی سدھارانی نے اچانک چند ڈویژن کا معائنہ کیا۔ گوپالا سوامی مندر، رامنا پیٹ، متھواڑا کے علاوہ اسلامیہ کالج سے متصل گلی اور واٹر ٹینک کے اطراف صاف و صفائی، نالیوں کی صفائی اور گلی کے صاف و صفائی کا معائنہ کیا۔ بلدیہ کے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ صاف و صفائی اور عوامی سہولیات کے لیے کام کرے۔ اس موقع پر کارپوریٹر رما تیجسوی، DE راگی سریکانت، سینیٹری سپروائزر گولکنڈا سرینیواس، AE حبیب اور دیگر نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ ضلع کے ABS آباد کے سرپور ٹاؤن کے سوشل ویلفیئر ریزیڈینشل بوائز اسکول کے گیٹ کے روبرو کاغذ نگر سے ریاست مہاراشٹر کو جانے والی R&B سڑک پر بچوں کے والدین کی جانب سے سرپور ٹاؤن سوشل ویلفیئر ریزیڈینشل کی بحالی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے راستہ روکو احتجاج کیا گیا، جس کی وجہ سے تقریباً 4 گھنٹوں تک ٹریفک نظام درہم برہم ہو گیا۔ اس کی اطلاع ملتے ہی مقامی تحصیلدار محمد رحیم الدین نے پولیس عملے کے ساتھ پہنچ کر احتجاج کرنے والے طالب علموں کے سرپرستوں سے بات کی اور کہا کہ دوبارہ سرپور ٹاؤن سوشل ویلفیئر ریزیڈینشل اسکول کو شروع کرنے کے لیے اعلیٰ عہدیداروں کو رپورٹ پیش کرتے ہوئے مقامی سوشل ویلفیئر ریزیڈینشل بوائز اسکول کے طلبہ اور والدین کے ساتھ انصاف کرنے کا بھروسہ دیتے ہوئے احتجاجیوں کو سمجھاتے ہوئے راستہ بحال کر دیا۔ بودھن میں جاری سرکاری فلاحی اسکیمات کا سب کلیکٹر آفس بودھن میں جائزہ اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ایڈیشنل کلیکٹر نظام آباد لوکل باڈیز انکت کے زیر نگرانی اجلاس میں خاص طور پر اندرما مکانات کے تحت زیر تعمیر مکانات کا جائزہ لیا گیا اور جہاں کہیں تعمیری کام کاج میں تاخیر ہو رہی ہے اس کی وجوہات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور اسکیم کے استفادہ کنندگان کو مکانات کے تعمیری کاموں میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی ایڈیشنل کلیکٹر نے عہدیداران کو ہدایت دی۔ اجلاس میں سب کلیکٹر بودھن وکاس میتھر، کمشنر بلدیہ بودھن جے دیو کرشنا اور میونسپل انجینئرز بھی موجود تھے۔ تمام مراکز صحت کے احاطے میں ادویاتی پودے لگائے جائیں۔ ضلع کلیکٹر کریم نگر پامیلا ستپتی نے حکم دیا ہے کہ ضلع کے تمام بنیادی صحت مراکز کے احاطے میں ادویات کے پودے لگائے جائیں۔ کلیکٹر نے آج تماپور پرائمری ہیلتھ سینٹر کا دورہ کیا اور انہوں نے وارڈ، لیب، میڈیکل اسٹورز، میٹرنیٹی وارڈ اور دیگر شعبے جات کا معائنہ کیا اور یہاں آنے والے مریضوں سے بات چیت کی۔ میڈیکل چیک اپ کے لیے آنے والی حاملہ خواتین کے زچہ بچے کے صحت کارڈ کا معائنہ کیا۔ ویکسینیشن کی تفصیلات بھی دریافت کی۔ میڈیکل افسران کو ہدایت دی کہ ضلع کے تمام بنیادی مراکز میں صحت و صفائی کا خاص خیال کرے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کہیں بھی کچرا پڑا نہ رہے۔ انہوں نے تجویز دی کہ ہر بنیادی مرکز صحت کے احاطے میں ادویات کے پودے ضرور اگائے جائیں۔ ضلع کے بھی آصف آباد کے ضلعی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس پاٹل کانتی لال سبھاش IPS نے اپنے ہمراہ ڈسٹرکٹ ایڈیشنل SP چترنجن اور مقامی پولیس ملازمین کے ساتھ مل کر ضلع میں خدمات انجام دینے والے پولیس ملازمین اور ہوم گارڈز میں رین کوٹس، ٹی شرٹس اور اون کے کوٹس کی تقسیم عمل میں لائی۔ کریسنٹ ہائی اسکول بودھن کے پرنسپل میر جاوید علی کے مطابق ان کے اسکول کی 2 سابقہ طالبات یعنی کہ رمشا بنت یزدانی، حریم فاطمہ بنت سید ارشد نے اپنی محنت و لگن سے تعلیمی سال 2025 کے دوران MBBS میں مفت داخلہ حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس کو انتظامیہ کی جانب سے آج ان ہونہار طالبات کے اعزاز میں ایک
तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें क्रिसेंट स्कूल में ज़ेर-तालीम तलबा और तालिबात और औलिया तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की और MBBS में मुफ्त दाखिला हासिल करने वाली तालिबात को तलबा, औलिया और स्कूल इंतजामिया ने मुबारकबादी पेश की। जिले के भी आसियाबाद के कागज नगर में गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुसलसल सरक़े की वारदातों में इजाफा हो गया, जिस पर SP कागज नगर मोहम्मद वहीदुद्दीन ने सरक़े की वारदातों को खुसूसी टीम के जरिए मुख्तलिफ अरसे में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। आज कागज नगर टाउन पुलिस स्टेशन में मोहम्मद वहीदुद्दीन ने अपने हमरा टाउन सर्कल प्रेम कुमार, सब इंस्पेक्टर सुधाकर के साथ मिलकर मीडिया से खिताब किया और कहा कि हमने किस तरह से सरक़े की वारदातों पर काबू पाया और टोली को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से नगद रकम के अलावा जेवरात को भी जब्त कर लिया गया। लरडी के रुकने असम्बली मदन मोहन ने आज गांधी भवन से प्रेस मीट मुनक्किद करके साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव की रियासती कांग्रेस हुकूमत पर तनकीदों को मुस्तरद कर दिया और कहा, हल्के में 100 साल रिकॉर्ड तोड़ बारिश होते हुए गैर मामूली तबाही मचाई, ऐसे में अवाम की मदद करने के बजाय हुकूमत पर तनकीद करना सरासर गलत है। मदन मोहन ने कहा, पोचारम प्रोजेक्ट का कट्टा टूटने को अहदेदारों के साथ मिलकर अवाम ने रात दिन मेहनत करके कट्टे को बचाया। KCR कालेश्वरम पर जितनी तवज्जो दी थी, अगर कुछ तवज्जो पोचारम पर भी दे देते तो आज ये नौबत ना पहुंचती और ये वक्त सिर्फ शिकायतें या तनकीदें करने का नहीं बल्कि किसान और अवाम का हौसला बढ़ाने और उनकी मदद का है। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने कोमरपल्ली पुलिस स्टेशन का अचानक मुआयना करते हुए इंतजामात और अमले की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर हिदायत दी कि मुकामी इदाराजाती इंतखाबात के पेश नजर तमाम तर पुलिस एहलकार इलेक्शन कमीशन के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक मुकम्मल तैयार हो जाए। कमिश्नर ने कहा, पुलिस महकमे की छवि बेहतर बनाने के लिए हर एहलकार दियारतदारी से अपने फराइज को बखूबी अंजाम दे। उन्होंने पुलिस मराकज़ का ज़ाती तौर पर मुआयना करने, साबिक़ा बदसलूकी के वाक़यात पर नजर रखने, साइबर जराइम की रोकथाम के लिए अवामी बेदारी मुहिम चलाने की भी हिदायत दी। साई चैतन्या ने मजीद कहा, सरहदी इलाकों में नक़ल हरकत पर कई निगरानी रखी जाए, ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाया जाए, नौजवानों को ऑनलाइन गेम्स और बिटिंग के नुकसान से आगाह करवाया जाए। LRD में फिर से जोरदार बारिश ने अपनी तबाही का सफर जारी रखने से तिम्मापुर इलाके का बड़े तालाब को फिर से शिगाफ पड़ गया, जिससे तालाब का सारा पानी बह रहा है। अभी अभी इस तालाब की कट्टे की मरम्मत की गई थी, लेकिन बारिश से ताब न लाते हुए कट्टा दोबारा टूट गया। तालाब का पानी नशेबी इलाके में फैल गया। 200 तक 300 एकड़ पर फैली फसलों को नुकसान का खदशा है, जिससे किसानों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मरम्मत करने के बाद दूसरी मरतबा तालाब को शिगाफ पड़ने पर आबी जखीरे पर भी सवालिया निशान लग रहा है। LRD के मंडल गंधारी में मुनक्किदा BRS पार्टी कायदीन के इजलास में BJP कायद तानाजी राव ने साबिक़ रियासती वज़ीर और BRS लीडर हरीश राव की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तानाजी राव ने कुछ अरसे पहले ही BRS से निकलकर BJP के आगोश में चले गए थे, जो दोबारा BRS में आते ही घर वापसी की। इस मौके पर साबिक़ रुकन असेंबली सुरेंद्र प्रशांत रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। निजामाबाद जिले कलेक्टर T विनय कृष्णा रेड्डी ने उद्योगदारों को हिदायत दी कि भू भारती प्रोग्राम के तहत ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों की फौरी यकसुई को यकीनी बनाया जाए, ताकि किसानों के ज़मीन से मुताल्लिक़ मसाइल बर वक्त हल हो जाएं। कलेक्टर ने वर्नी तहसील ऑफिस का आज अचानक मुआयना करते हुए भू भारती स्कीम के निफाज का जायजा लिया। LRD MPD प्रकाश MO राजुलू और दीगर ने आज मेसनपल्ली इलाका किसान वेदिका में MPTC और ZPTC इंतखाबात के ज़िमन में प्रोसीडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोसीडिंग ऑफिसर के लिए दोपहर में तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर मशवरे दिए और इंतखाबात से मुताल्लिक़ ज़रूरी हिदायतों से वाकिफ करवाया। LRD के माचापुर में तहसीलदार प्रेम कुमार MPDO प्रकाश ने धान खरीदी सेंटर का इफ्तिताह करते हुए किसानों को अपनी फसल सेंटर पर ही लाने और फरोख्त करने का मशवरा दिया। इस मौके पर APM नारायण गौड़, AEO रविंद्र और दूसरे भी मौजूद थे। सफ़ा बैतुलमाल शाह आदिलाबाद की जानिब से साल भर में मुख्तलिफ रिफाही और फलाही काम जारी रहते हैं, जिसका मकसद माशरती बहबूद और ज़रूरतमंदों की मदद करना होता है। इन खिदमात में काबिल ज़िक्र ज़रूरतमंदों, मुसाफिर, गरीब और नादार लड़कियों की शादी के लिए जुज़वी इमदाद, तिब्बी इमदाद के अलावा जिस्मानी माजूरी, बेवाओं बेसा अफराद में माहाना वज़ाइफ की तक़सीम शामिल है। ये सिलसिला गुज़िश्ता 2 सालों से मुसलसल जारी है।
इसी सिलसिले में कल यानी इतवार को 5 अक्टूबर 2025 को दफ्तर सफा बैतुल माल शाख आदिलाबाद पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 26 माजूरीन बेवाओं और बेसहारा अफराद में फीकस 500 रुपये के हिसाब से 13,000 रुपये के अलावा 2 शदीद जरूरतमंद अफराद को 1,000 रुपये जुमला 15,000 रुपये की नकद रकम तकसीम की गई। इस मौके पर सदर सफा बैतुल माल सैयद मुबशिर अहमद रशीदी ने अपने बयान में कहा कि ये प्रोग्राम मौशरती जिम्मेदारियों का हिस्सा है और जरूरतमंदों की मदद के लिए ये इदारा हमेशा मसरूफ रहता है। तकरीब में मोतमद सफा हाफिज काजिम बादशाह मिसबाही और दूसरे भी मौजूद। तालीम याफ्ता नस्ल तहजीब याफ्ता मुआशरे की तश्कील में अहम किरदार अदा कर सकती है। ये बात जिले निर्मल के मुसलमानों के लिए काबिल फ़ख्र और काबिल मसरत है कि छोटे से जिले निर्मल के मुख्तलिफ इलाकों से लड़के और लड़कियों की बड़ी तादाद ने काफ़ी मेहनत और मशक्क़त से MBBS में दाखिला हासिल करते हुए अपने वालिदैन और अपने इलाके का नाम रोशन किया। इन ख्यालात का इजहार मौलाना अब्दुल अलीम खासिमी, इमाम खतीब मस्जिद सलीम ने मुस्लिम एम्प्लॉयज एसोसिएशन निर्मल के ज़ेर एहतमाम निर्मल से ताल्लुक़ रखने वाले 22 तलबा तालिबात को तेलंगाना के मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला मिलने पर तमाम तलबा की तहनीती तकरीब मुनक़िद की। इस तकरीब से मौलाना खिताब कर रहे थे। मेहमान खुसूसी की हैसियत से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर डी बहुजना ने शिरकत की। मौलाना अब्दुल अलीम खासिमी ने कहा, तंग दस्ती, गरीबी और मुफलिसी का कत्ल करने वाली एक ही तलवार है और वो है तालीम। आज मैं इन तमाम खुशनसीबों को दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूँ कि मुसलसल जिदोजहद करते हुए मेडिकल कॉलेज में निशीत हासिल करते हुए अपने वालिदैन का नाम ऊंचा किया। आइंदा भी इस पेशे से इंसाफ करते हुए अपनी खिदमत को जारी रखें। निश्चित हासिल करने के लिए जो मेहनत आप लोगों ने की, इस सिलसिले को हुसूल डिग्री तक जारी रखा जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में डॉक्टरों की बड़ी अहमियत है। इस पेशे से अपना मुस्तकबिल भी संवारे और अवामी खिदमत का भी शानदार मौका मिलेगा और ये काबिल मुबारकबाद है। मुस्लिम एम्प्लॉयज एसोसिएशन के तमाम जिम्मेदारान जो हर शोबे से मुंसलिक अफराद की बेलौस हौसला अफजाई करने के लिए हमेशा आगे आते हैं, इन्हें भी उन्होंने दिली मुबारकबादी पेश की। इंसानी जिस्म और आज़ा की अतियत से मुतालिक शोर बेदार करने के मकसद से निजामाबाद में 7 अक्टूबर मंगल की सुबह 10:30 बजे सुभाष नगर इस्लामाबाद में पेंशनर्स भवन में एक शोर बेदार इजलास मुनक़िद किया जा रहा है। ये प्रोग्राम जना विज्ञान वेदिका, तेलंगाना ऑल पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पर्सन्स एसोसिएशन और मल्लू स्वराजम मेमोरियल ट्रस्ट के इश्तराक से मुनक़िद होगा। जिस्म और आज़ा की अतियत के फरोग़ में तवील अरसे से सरगर्म मुमताज़ मुहिम का इस इजलास में शरीक रहेंगे। हनमकुंडा जिले कांग्रेस भवन में हनमकुंडा जिले सदर MLA नायनी राजेंद्र रेड्डी ने BIS पार्टी के धोखेबाज वार्ताओं पर मुश्तमिल BRS धोखा काट का रस्म इजरा किया। इस मौके पर हनमकुंडा जिले सदर वो MLA नायनी राजेंद्र रेड्डी और वरंगल MP डॉक्टर कड़ियम काव्या, वरंगल जिले कांग्रेस पार्टी के सदर अरब अली सुवर्णा, वर्धनापेट MLA नागराज और दीगर जिले कायदीन भी शरीक थे।